Hello class, welcome back. This is Master Mains and I'm Abhi Rao, which is not important at all. And this is a course on GS3, lecture 2. Lecture 1 मैं cover कर चुका हूँ पहले भी. And as I promised कि GS1, GS2, GS3 and GS4 I'll be covering. And beside that I will do a previous year question paper. At the same time we'll do answer writing. ठीक है? So stick to it. Okay. So first lecture was about the Indian economy and issue is related to mobilizing. And this is our second lecture whereby I'll be telling you about the resources. Okay. I'll be telling you the resources and next lecture में we'll cover the growth, development and employment. तो 3 lectures में वह एक topic खत्म हो जाएगा and ये पूरा ही इकोनॉमिक्स का ही सिलेबस है फ्रॉम GS3 मेंस का. एंड एज यू कैन सी जो ये दोनों पॉइंट्स हैं ये एग्रीकल्चर के हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर के पॉइंट्स हैं और ये वाला पोस्ट एग्रीकल्चर है वेयर बाय जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे आलू है वो चिप्स बनते हैं. ओके, एंड दिस इज लैंड रिफॉर्म क्योंकि एज वी नो कि 85% पॉपुलेशन जो है दे आर द marginal farmers. They do not have even 2 acre of land. Okay, so land reform was very important, that was did. And ठीक है, and this is the liberalization that we know, privatization liberalization. And ठीक है 1991 में हुआ था जो, ठीक है, उसमें जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी और उसका क्या इफेक्ट है एंड उसके अभी क्या बेनिफिट्स हैं. डू वी नीड टू चेंज, व्हाट आर द न्यू पॉलिसीज दैट आर कमिंग अप. ओके, सो and this is our investment model. So ये सारा syllabus है जो economics का syllabus है, we'll covering in that. At the same time as you have already told you कि this is second lecture and इसके बाद third lecture आएगा. Alright, and we'll cover whole GS3 syllabus. Stick to this, subscribe my channel. Okay, thank you. And this is the golden rules that I have made in which the syllabus is outmost important and second most important thing is the previous year question paper. Please इन दोनों चीजों को मत नेग्लेक्ट कीजिएगा as if you want to clear this exam. Other than you can do anything. राइटिंग प्रैक्टिस आप लेट कर सकते हैं, जब आपका प्री क्लियर हो जाए अब आप कोई टेस्ट रिज्वाइन कर लें और उसके बाद कर लें, दैट्स ओके. करंट अफेयर आपको मैं स्टैटिक क्वेश्चन करा दूंगा लेकिन जो करंट अफेयर है आपको उसको लिखना पड़ेगा ताकि और पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा क्योंकि I'll be telling you कि कहाँ करंट अफेयर पढ़ना है और कहाँ स्टैटिक. ओके, बट this is the only 2 thing that UPSC has conveyed to us, so please do not ignore this. Okay, as I told you आज we'll do resources. What is resources? As I can tell you, anything which has value. ठीक है, anything which has value and with the time जो हमारी needs को satisfy कर पाएगी with the developing time and technology which has potential. Okay, so any material which has a value and with the time and technology we develop it so that we can satisfy our needs is called resources. Okay, so there are the 3 common features of the resources. Utility, हर resources की utility होती है, limited availability, coal, CNG, petroleum products, and with the time they deplete. So these are the common features of resources. Please understand what is resources. Any resources refers to the all material needs that are available in our environment जो हमारी needs को satisfy करते हैं and with the time and technology we develop it and we use it. Okay, all right, so that these are the types of resources. ऐसे और भी types हो सकते हैं but mainly there are 3 important types I can see, and natural resources, human resources and financial resources. Natural resources as we know कि renewable resources होते हैं and non renewable resources होते हैं. ठीक है, renewable resources वो resources होते हैं जो unlimited हैं, available हैं, exhausting नहीं होते हैं. ठीक है, land, air, water, sunlight. ठीक है, और depleting resources वो resources होते हैं जो टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं. ठीक है, कोल हो गया आपका, खत्म हो जाएगा एक दिन. पेट्रोलियम हो गया. ठीक है, एवरीथिंग. And human resources
is a very much important resources because आप एक बार इसमें इन्वेस्ट करते हैं, एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो ये टाइम के साथ डिप्लीट नहीं होता, बल्कि एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। प्लस वो कंटिन्यूअसली आपको जीडीपी में सपोर्ट करता है, ठीक है, थ्रू टैक्सेशन, थ्रू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग। सो ह्यूमन रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। आपने जो इंडेक्स देखा होगा एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इट्स वेरी। तो गवर्नमेंट का काम है कि आपकी कैपेसिटी डेवलप करे, आपको स्किल प्रोवाइड करे, ठीक है, ताकि आप जीडीपी में, नेशन में एज अ होल कंट्रीब्यूट कर सके। सो ह्यूमन रिसोर्सेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एवरीथिंग व्हिच हैज रिलेटेड टू द मनी, व्हिच इज आपके बॉन्ड हो गए, शेयर्स हो गए, ठीक है, प्लस बैंक्स हो गए विद मनी, ठीक है, एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द मनी इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, इट आल्सो कवर्स आपकी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और आपके फॉरेस्ट, ठीक है, everything which is available in the nature and can be used to satisfy the human need with the time and technology improvement and has a potential to satisfy the need is called resources, ठीक है। समझ आ गया रिसोर्सेज क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। Okay, so how we engage with the resources, how the steps, how we do this, पहले हम identify करते हैं what are those resources, then we engage with it, and we try to come up with the obstacles that are occurring and what are the technological resources we can do, and then we see what are the pros and cons to it, ठीक है, and फिर उसी हिसाब से we take our decisions। ओके, डिसीजन में हम और भी बहुत फैक्टर देखते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह देखते हैं, सब कुछ। तो वी कैलकुलेट एवरीथिंग एंड दिस आर द स्टेप्स व्हिच इज एक्चुअली नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वी डू दिस, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेस कि व्हाई वी डू दैट, व्हाई वी नीड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना किसी पर्टिकुलर जगह से and use it so that we can develop this nation, okay। So why we mobilize resources from one place to another, that's called mobilization, right? So through the country has the sufficient reserve, India as a country has the sufficient reserve, some bottlenecks are that we have the technological obstacles, ठीक है, and जो बोटलनेक्स के अलावा हमारी प्रॉब्लम वो ये है कि जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी हैं, वो किसी ऐसी सी जगह पे which is hard to extract, like some are in the hilly region, if you can say कि some are available in the Himalayas, so you can imagine how difficult it is for the India as a growing developing nation to extract the minerals and the things from the Himalayas, ठीक है, it's very difficult, ठीक है। but with the time as we know कि जो H2O है, H2O which is water हाइड्रोजन से होता है, हाइड्रोजन एक बढ़िया फ्यूल होता है, ठीक है, बट हम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें इसको हम कम पैसों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन को यूज कर सकते, जबकि हमारे पास पानी बहुत सारा है, ठीक है। सो बेसिकली माय पॉइंट इज नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, बट टेक्नोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स की वजह से we do not or we cannot exploit those natural resources, ठीक है। एंड उसके अलावा कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे पॉलिटिकल वोट्स होते हैं, जो वोट बैंक होते हैं, अब किसी एरिया से आ रहा, वहां पे कोई रिसोर्सेज है, ठीक है, अब गवर्नमेंट कैन नॉट इजिली एक्सट्रैक्ट इट। अगर गवर्नमेंट को किसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अगर वेस्टर्न घाट पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा करना है, कुछ भी ऐसा करना है, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन क्या करता है, ट्राइबल पॉपुलेशन उसको आपको डिफेंड करता है, ठीक है। जैसे आपको चिपको आंदोलन पढ़ा होगा आपने, ठीक है, चिपको आंदोलन में क्या था, पेड़ को नहीं कटने दिया। अब assume a situation जहाँ पे country need those things, country need public plus private, I know that
that we understand the importance of our nature, we understand, but for the economical prosperity we need natural resources. अगर हम natural resources नहीं extract कर सकते तो that is gonna be problem for the development, right? So ऐसे ही बहुत सारे political factor plus resistance from the tribal people, development of exploitation of resources, interstate conflict होता है, जैसे water resources का conflict होता है between नर्मदा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज के साथ होता है, जैसे आप चाहो तो जो डैम नहीं बना सकते उन रिवर्स के ऊपर जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के ऊपर जा रहा है, क्योंकि उनके वाटर फ्लो पर असर पड़ेगा और आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, या आप लिमिटेड ही पानी यूज कर सकते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द बोटलनेक्स, दीज आर द प्रॉब्लम्स that stops it, that resist it from the extraction of natural resources, all right? So human resources, what are the problems in human resources, why we need to develop it, why we need to mobilize the human resources, is that जो अपना weaker section है SC ST OBC वगैरह should be the mainstream। आपको पता होगा ये जो सेक्शन है, जो वुमेन्स का सेक्शन है और जो चाइल्ड का सेक्शन है और जो SC ST OBC का सेक्शन है, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा सफर करता है। इनको आप सिटीज में होगे, आप ऐसी जगह पे होगे, आप प्रिविलेज इनफ होगे कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ रही, बट अभी भी वो न्यूज आती है, अभी भी चीजें आती है जहाँ पे जो SC ST कैटेगरी के होते हैं, जो माइनर्स होते हैं, रेप केस उन्हीं के ज्यादा होते हैं। आप डेटा उठा के देख लीजिए, रेप केस उन्हीं के ज्यादा होंगे, एक्सप्लॉइटेशन उन्हीं का होगा, जितने भी सीवरेज वाले काम होते हैं वो वही करते हैं, तो ये मेन स्ट्रीम में आ नहीं पाते हैं, ठीक है। And we have population of 125 crore of population, ठीक है, which is even up to 140 crore हो गया है, ठीक है। अब 140 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है, जिसमें से अराउंड 65% पॉपुलेशन जो वर्किंग फोर्स है, which means जो कि 18 से आपके 50 के अराउंड है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है आपकी, वो पॉपुलेशन है। सो वी आर यंगर पॉपुलेशन, वी हैव दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, we have this demographic dividend, but we cannot reap it unless we are having this quality education, ठीक है, we are capacity building, skill, proper health which includes nutrition as well। अगर ये सारी चीजें हम उनको अवेलेबल नहीं करा पा रहे तो एक बच्चा बड़ा होगा तो उसमें कौन से वैल्यूज होंगे, वो कौन सी चीजों को रख पाएगा या नहीं, वो क्या डेवलप कर पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेमोग्राफिक ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है किसी कंट्री का, उस कंट्री की ग्रोथ के लिए। जितना ही वो जीडीपी में ग्रोथ कर पाएगा, चाहे वो आईटी में काम करके कर पाए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में करके कर पाए, चाहे कोई भी स्टार्टअप कुछ भी करे, वो अच्छा खासा गवर्नमेंट को टैक्स देगा, अर्न देगा, प्लस एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। At the same time we have financial resources should be robust। हमारे जो बैंकिंग हो उनमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो वो कम हो, ठीक है। लैंड और जितनी भी आपको जो लोन वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं वो काफी कम पैसे में प्रोवाइड किए जाए, कम इंटरेस्ट रेट पे। ऑल्दो वी आर द कंट्री जहाँ पे जो हमारा जो सेविंग रेट है अराउंड 30% है, ठीक है। 30% हमारा सेविंग रेट है, जो कि 27 हो गया था कोविड में, फिर 32 हो गया था, घटता बढ़ता रहा, बट मोर और लेस इज अराउंड 30%, ठीक है। अगर 30% सेविंग रेट है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है सेविंग रेट का, बट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। और अगर इन्वेस्टमेंट है भी तो ऐसे लेस प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया गोल्ड बहुत पसंद करता है, ठीक है। गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर गरीब होते हैं लेकिन गोल्ड होगा उनके पास, आप उन चीजों को ही और अच्छा यूज कर सकते हैं, बट नहीं, दे वोंट डू दैट। सो वी हैव, डिस्पाइट हैविंग द गुड सेविंग रेट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज लेस, वी हैव प्रॉब्लम विद द लेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट का वो बहुत कम होता है, आपको पता है, बहुत कम परसेंट लोग टैक्स देते हैं, इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। टैक्स बेस भी हैज टू बी वाइडेंड, टैक्स बेस को बढ़ाना पड़ेगा, जितने ज्यादा लोग टैक्स देंगे, जितना जीएसटी ने बहुत करा है ऐसा। मेरे खुद के पापा अब जीएसटी भरने लग गए, पहले वी डोंट यूज टू फाइल द जीएसटी बिकॉज उतनी इनकम ही नहीं होती थी, ठीक है। सो बेसिकली टैक्स बहुत वाइडन कर दिया है टैक्स पर, ठीक है। अब बहुत ज्यादा लोग टैक्स भर सकते हैं। सो वी हैव टू कम अप विद दोस पॉलिसीज
so that we can have these financial resources to the government. गवर्नमेंट के पास जितना रिसोर्सेज होगा वो उतना ही ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट कर पाएगा जहाँ पे बाकी लोग नहीं करते। जैसे आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर उतना आता, हेल्थ सेक्टर में है मानता हूँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है, हेल्थ, आपका रोड हो गया, ठीक है, आपका हेल्थ हो गया, आपका स्किल डेवलपमेंट हो गया, ऐसी चीजें में वो प्राइवेट सेक्टर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करता है क्योंकि उतना प्रॉफिट नहीं है, राइट? सो दिस आर द प्रॉब्लम, ओके। And then question arises, what are the sources of resources mobilization in India? How government mobilize the resources? Tax collection से, आपके जितने भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे स्कूल्स हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी मान, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपके जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जैसे LIC हो गई, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करती, गवर्नमेंट इनको पैसा देती, अराउंड 56 लाख करोड़ कुछ है, ठीक है। I don't know, I'm sorry for the figures, I'm not sure about it, but मैंने कहीं पढ़ा था, मे बी 56 अराउंड कुछ की कुछ एसेट वर्थ है LIC की, प्लस एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है, ठीक है। वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा था LIC, क्योंकि वो सारे LIC एजेंट बन रहे थे 1960s में, एंड आसपास का अपना नेटवर्क यूज करके सबका बीमा कर रहे थे, राइट? सो गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू करती है, फाइन्स एंड ड्यूज की वजह से भी टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। आपका जो ट्रैफिक पुलिस है काफी इन्वेस्टमेंट जनरेट करता है, ठीक है। ऐसे ही आपके जितने भी PSUs हैं, हर एक PSU कुछ ना कुछ, जितने भी नवरत्न महारत्न है, दे आर अर्निंग वेल, ठीक है। तो गवर्नमेंट का वहां से पैसा आता है, टैक्स रेवेन्यू से पैसा आता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर मोबिलाइज रिसोर्सेज इन द फॉलोइंग। प्राइवेट सेक्टर तो ठीक है, एक तो बैंक से ले लेता है, ठीक है, आपके जो इन्वेस्टमेंट मर्चेंट बैंक्स होते हैं उनसे पैसा ले लेता है, जितने फाइनेंशियल इंटरमीडिएट होते हैं उनसे पैसा ले लेता है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं और भी एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो वहां से प्राइवेट के लिए पैसा आ जाता है, ठीक है। लेकिन बैंक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे पाए, ठीक है। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जहाँ पे लॉन्ग टर्म चाहिए होता है, जैसे हाउसिंग सेक्टर हो गया आपका, ठीक है। हाउसिंग सेक्टर में आपको सालों का लोन चाहिए होता है, ठीक है। अब बैंक्स इतना वेट नहीं कर सकते, तो उसके अंदर ऐसे जैसे हाउसिंग बैंक्स हो गए, और या आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक्स हो गए। सो दीज आर ऑल द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, ठीक है, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो डेडिकेटेड कोई NBFC हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। Okay. So these are what are the role of the fiscal policy in the resource mobilization? Mobilization का मतलब basically होगा इकट्ठा ही करना, ठीक है, कि कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं रिसोर्स को, ठीक है। In a liberal mixed economy, our task of the financial is not to raise the saving rate. सिर्फ सेविंग रेट नहीं, but to accelerate the investment, ठीक है, in a resource problem from under development countries, ठीक है। अब ये जितनी भी स्टेटमेंट है, मैं इनको अगर सबको पढ़ने बैठूंगा या सबको सबकी मीनिंग समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेटर आप इस स्क्रीन को रोक के अपनी वीडियोस को देख लीजिए और उसमें पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई टेल यू द बेसिक थिंग्स कि क्या होता है, कि मैंने खुद ही कट करके लिखे हुए हैं, तो आई नो इट, आई कैन नॉट जस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके। So on the expenditure, we know that ऐसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, हैवी इंडस्ट्रीज है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। बेसिकली आई एम गोइंग टू टेल यू कि व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी वो होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट अपनी अर्निंग को इस तरह से ही खर्च करती है या इस तरह से पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है ताकि वो इकोनॉमी को अपने तरीके से चला सके, ठीक है। जैसे RBI क्या करता है, RBI करता है जितने भी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके मनी पावर को कंट्रोल करता है, उनके मनी ट्रांसफर्स को कंट्रोल करता है, उनकी लैंडिंग पावर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी से ऐसी चीजें करती है जिससे वो किसी एक सेक्टर को बूस्ट कर पाए, किसी डिजायर्ड जो भी उनके डिजायर्ड गोल्स होते हैं उनको अचीव कर पाए, ठीक है। अब जैसे
इंफ्रास्ट्रक्चर में करना हो तो प्राइवेट सेक्टर्स को कहे कि हम आपको टैक्स एग्जम्पशन देंगे, ठीक है, आपको 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 सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, आपको लैंड जो लीजिंग होगी, आपको जो लैंड क्लियर कराना होगा, हम उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट कम अप विद दोज पॉलिसीज व्हिच हेल्प्स द गवर्नमेंट इन द इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो कलेक्टिव सेविंग के लिए ही नहीं होता, बल्कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी जरूरी होता है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी अलाउज द गवर्नमेंट टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज फॉर द एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जितने भी आपके हॉस्पिटल्स होंगे या रोड्स होंगी, वो कहाँ से आएगी गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट का टैक्स जो होता है, उसके अलावा गवर्नमेंट का जितनी भी बोरोइंग होती है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मीडियम से कर सकते हैं, लेकिन उन बोरोइंग की एक लिमिट होती है। तो उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट बोरो करती है, बट लिक्विडिटी क्रंच ना हो, वो इतना बोरो नहीं कर सकती कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही ना हो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होगी, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा, वो भी लोन लेगा। लोन लेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बाकी सब सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा, तभी तो उससे एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन होगी, ठीक है। ओके, सो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट का काम है सिर्फ ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इंक्लूसिव ग्रोथ का ध्यान देना, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ का ध्यान देना। इंक्लूसिव ग्रोथ में गवर्नमेंट को ध्यान रखना होता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के लोग हों, लोअर मिडल और अपर मिडल, और इवन जो कि आपकी जो पॉवर्टी है, एज वी नो कि अबाउट 27% पॉपुलेशन आर इन पॉवर्टी, ठीक है। इन पॉवर्टी पॉपुलेशन को, इनको पीडीएस के थ्रू, राशन के थ्रू हर एक ऐसी चीजें प्रोवाइड करी जाती है। जैसे आपका जनधन योजना हो गया, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। आपका आपका जो हेल्थ हो गया, जन आरोग्य मिशन हो गया, ठीक है, आपका वाटर पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुंचाना, सिलेंडर पहुंचाना, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना। गवर्नमेंट कम अप विद दिस पॉलिसीज, जहाँ की गवर्नमेंट की इनकम नहीं होती है, गवर्नमेंट रिसोर्स मोबिलाइज नहीं करती है, बट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है ताकि इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, ठीक है। व्हाट आर द रोल्स? ठीक है, आपको बस ना, जैसे यहाँ पे है, आपको 3-4 चीजें यहाँ पे बता रखी मैंने। एक टैक्सेशन जो मैंने नहीं बताया, ठीक है, वो इसमें नहीं डाली स्लाइड्स में। टैक्सेशन के थ्रू गवर्नमेंट इनकम और मनी और रिसोर्स जनरेट करती है, ठीक है। एक फिस्कल पॉलिसी से करती है, ठीक है, एंड एक आपका बैंकिंग से करती है, ठीक है, और कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट जो आपकी होती है, वहां से करती है, ठीक है। दीज आर द वेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट मोबिलाइज इट्स रिसोर्सेज, ठीक है। मनी मार्केट जो आपको 1 साल तक का होता है, ठीक है, 1 साल या कम से होता है। कैपिटल मार्केट जहाँ पे 1 साल से ज्यादा होता है। गवर्नमेंट लोन लेती है, जब कम समय के लिए लेती है तो वो मनी मार्केट होता है, जब ज्यादा समय के लिए लेती है तो वो आपका कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज से लेती है। ये कैपिटल और फाइनेंशियल बेसिकली गवर्नमेंट, आपको पता है, गवर्नमेंट आपको शेयर्स इशू करती है, ठीक है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आरबीआई के थ्रू आती है, ठीक है। ऐसे ही जो इंश्योरेंस है गवर्नमेंट, जैसे एलआईसी हो गई, तो उससे एलआईसी क्या करता है, आपको इंश्योरेंस बेचता है, उसके बदले इंश्योरेंस के जो पैसे कलेक्ट करता है, वो सारा पैसा कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट उन पैसों को इन्वेस्ट करती है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, ठीक है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, एंजल इन्वेस्टर्स में नहीं, ये रहा एंजल इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। So these are the ways from where the government mobilize its financial capital or financial resources, human resources, financial resources and natural resources। जो financial resources है वो गवर्नमेंट इन्हीं के थ्रू, ठीक है, अट्रैक्ट करती है, alright? And this is how बैंकिंग से कैसे करती है, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया। मैंने सबके आगे लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा सा, जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आप फिल्म्स में पढ़ के आओगे मेंस के लिए, वो चीज नहीं है यहाँ पे। मोस्टली मेरा काम है जस्ट टू टेल यू द डायमेंशंस इसी टॉपिक के। जैसे सिर्फ रिसोर्स लिखा हुआ है, या ग्रोथ लिखी हुई है, या डेवलपमेंट लिखा हुआ है, या एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, सो आप इस वर्ड की मीनिंग तो जानते हो, बट उनके डायमेंशंस जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, क्या आप उनको जानते हो या नहीं, ठीक है।
I'll try to give you some overall framework and ideas, ठीक है? You need to understand it. अगर आप जब करंट अफेयर पढ़े, जब न्यूज़पेपर पढ़े, तो आप वहां से चीजों को पढ़ के याद करके जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उन स्कीम्स को लिखें और उनको आंसर राइटिंग करते वक्त उसको यूज करें. दिस इज द पर्पस ऑफ दिस lecture, this series, to tell you the overview of the syllabus, to answer you, to cover your static portion so that you can substantiate with your current affair. All right. So international market. So I was telling this banking and resource mobilization बैंक से कैसे करते हैं. There are number of banks. ठीक है. नो NBFC भी होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, बैंक्स हो गए. वो कौन से तरीके हैं जहां से गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है. ठीक है. शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए जो 1934 के अंदर एक्ट के अंदर है, दे आर शेड्यूल कमर्शियल बैंक. जो उसके अंदर नहीं है, दे आर नॉट शेड्यूल. ये आपका स्टैटिक पोर्शन है, आपका आपका प्रीलिम्स का पोर्शन है, जो आप रमेश सिंह पढ़ेंगे या श्री राम पढ़ेंगे तो आप वहां से कवर कर लेंगे. मेरा वो पर्पस नहीं है सारी डेफिनेशंस का नहीं देने का, बट आई विल टेल यू द स्कीम. एनबीएफसी होगी, मर्चेंट बैंक्स होगी, आपको आंसर लिखते वक्त ये सारी चीजें याद रखनी है, ये वर्ड्स यूज करने, ये कीवर्ड्स है. ठीक है. आई विल गिव यू द कीवर्ड्स, आई विल गिव यू द डायमेंशन, आई गिव यू द फ्रेमवर्क. आंसर राइटिंग एंड जर्नलिस्टिक आंसर जो लिखना होता है, यू कैन फ्रेम योर ओन आंसर, राइट. क्योंकि सारी चीज पढ़ाई तो आएगी नहीं, सारी चीज ऐसी आएगी, बट यू हैव टू यूज दीज कीवर्ड्स इन योर आंसर्स टू मेक इट लुक मोर जस्टिफाइड आंसर. ठीक है. सो आई कैन टेल यू कि देयर इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक. ठीक है. जो आपको जितने भी, जब आप एक किसी प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. जब आपको पता है कि आप जब सामान भेजेंगे तो कंटेनर्स में जाएगा, उसका भी एक इंश्योरेंस होता है. ठीक है. ऐसे ही आपको जो भी पेपर्स वर्क के लिए होता है, या आपके किसी जो जैसे यहाँ से और वहाँ पैसे आप ट्रस्ट कैसे करेंगे, वहां से पैसे नहीं आते, उसके लिए एक बीच में इंटरमीडिएट होता है. ठीक है. ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सारे काम के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है. ठीक है. हाउसिंग के लिए एक हाउसिंग बैंक है. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बता दिया. ऐसे फॉरेन बैंक्स होते हैं हर कंट्री में, मतलब हर कंट्री के बैंक्स हर कंट्री में होते हैं. ठीक है. आरआरबी हो गए. आरआरबी वो बैंक है जो 1975 में बने थे, एंड इनका पर्पस ये था कि रूरल में फाइनेंशियल को पहुंचाना, मे बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए. आप ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली, एंड रूरल्स को इनकी जो 75% ब्रांच होती है, इनकी जो लैंडिंग प्रायोरिटी होती है वो भी नहीं होती, क्योंकि इनका सारा बिजनेस ही रूरल्स में होता है. ठीक है. कॉर्पोरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक्स आपको पता ही है, जो LIC HDFC हो गए, ये प्राइवेट बैंक्स हो गए आपके. ठीक है. ऐसे ही फाइनेंशियल बैंक, नॉन फाइनेंशियल बैंक होते हैं, ये पैसा इकट्ठा नहीं करते, बल्कि इनका 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 पैसा इकट्ठा मतलब सेविंग से नहीं होता. आप खुद पैसा वहां पे इकट्ठा नहीं करते, और लेकिन ये लैंड करते हैं पैसे बिजनेसेस को. ये डेडिकेटेड होते हैं. ये बहुत तरह के बैंक होते हैं. एनबीएफसी बहुत तरह के होते हैं, और वो सबका अलग अलग काम करते हैं. ठीक है. ऐसे ही कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं, इसमें जो ओनर्स वगैरह होते हैं, और वही लैंड भी अपने आप में ही कर लेते हैं. जैसे 5-6 लोग मिलके अपना पैसा लगाएं और खुद ही लैंड करें, वो सारी चीजें. सो कॉर्पोरेट बेसिकली, मैं आपकी इन सबकी डेफिनेशन नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दीज आर द sources where the government, these are the banking or financial resources where the government mobilize its resources. ठीक है. एंड दिस इज एफिशिएंसी. आप जीडीपी अपॉन में आपके जितनी डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको करें और फिर डिवाइड कर दें, तो यू विल गेट टू कि आपके रिसोर्स में कितनी एफिशिएंसी आ रही है. ऑलराइट. सो कैपिटल मैंने आपको बता दिया. नाउ व्हाट आर द इश्यूज विद रिगार्ड टू मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो इंडिया में मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉब्लम देगी. एक तो बजट डेफिसिट, एज वी नो कि अवर बजट डेफिसिट, अवर फिजिकल डेफिसिट इज हाई. ठीक है. हाई बोरोइंग डिपेंडेंस ऑन बैंक्स. ठीक है. लोग इन्वेस्ट नहीं करते म्यूचुअल फंड्स वगैरह में या स्टॉक्स में, शेयर्स में. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है. ठीक है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो बोरोइंग इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है, 12-13-15% के अराउंड. ठीक है. ऐसे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है. ठीक है. इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, सबके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उतनी इनकम भी नहीं है. एक इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम कितनी होती है, पर कैपिटा मतलब एक आदमी कितना इनकम कर रहा है. ठीक है. ऐसे ही आपकी मतलब जीडीपी से डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही पूरी कंट्री जब बहुत सारा कमाती है, बहुत सारा सब के सब इंगेज रहते हैं किसी एक्टिविटी में, तो उससे इनइक्वालिटी कम होती है.
ठीक है। अब जैसे इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि आपके 1% या 2% लोग बहुत ज्यादा ओन करते हैं, मुकेश अंबानी बहुत पैसा, अडानी बहुत पैसे, ठीक है, ये सबके पास इतना पैसा है कि खुद की अपनी कंट्री चला सकते हैं एक छोटी छोटी, ठीक है। ऐसे इनएफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कुछ बहुत 5-6% लोग ही टैक्स भरते हैं, वरना लोग टैक्स ही नहीं भरते, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है पर डायरेक्ट टैक्स बहुत कम होता है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत रिलाय करते हैं, जो एफडीआई होते हैं, जो एफडीआई हो गई और आपकी एफआईआई हो गई, ठीक है, हम इन सब पे बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं। जब 1991 में जब खोला गया था, जब एफडीआईज वगैरह आने लगी थी, तब से हमारी प्रोग्रेस शुरू हुई थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो कंट्री की इन्वेस्टमेंट है, जो बस यहाँ की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है पॉवर्टी की वजह से, ठीक है। इंडिया की सब्सिडी सिस्टम जो है, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, नो मैटर की इट्स इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है, और आपको पीडी वो जो आपको फार्म्स और एग्रीकल्चर पे जो सब्सिडी मिलती है, काफी इनएफिशिएंट है। एक राजीव गांधी का बहुत फेमस कोट है, आई डोंट नो राजीव गांधी, संजय गांधी का एक फेमस कोट है कि अगर हम 1 रुपए रिलीज करते हैं ना अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अपर से, तो वो 25 पैसा ही पहुंचता है। इतना इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी सब्सिडी सिस्टम बहुत बेकार है। कुछ ऐसी सब्सिडी स्कीम है जो गवर्नमेंट कंटिन्यू करे जा रही है, जबकि उसका बेनिफिट उतना नहीं है, बट क्योंकि पॉलिटिकल बैंक आपका पॉलिटिक्स है, आप डेमोक्रेसी में हो, यू कैन नॉट जस्ट सिंपली गो एंड गेट अवे एवरीथिंग, सो यू कांट डू दैट, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सारे प्रॉब्लम्स है इंडिया में रिसोर्स मोबिलाइजेशन के, ठीक है। ये ओवरऑल एक कंट्री में जो प्रॉब्लम होता है, एक कंट्री, 2 कंट्री, 3 कंट्री, 4 कंट्री, ठीक है, उन सबकी प्रॉब्लम से माना बेसिकली वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है, लिमिटेड डोमेस्टिक पब्लिक रिसोर्सेज। अब इस कंट्री में उतना रिसोर्सेज नहीं है कि इस कंट्री के पॉपुलेशन की पूरे अच्छे से रिसोर्सेज को सेटिस्फाई कर पाए। रिसोर्सेज अपने आप में एक स्केयर होते हैं, आई टोल्ड यू ना फर्स्ट स्लाइड की रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही वीक डोमेस्टिक टैक्सेशन एंड फिस्कल पॉलिसी आई टोल्ड यू की गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है उनको इस तरह से यूज करे ताकि इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर पाए, दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। लैक ऑफ नेशनल एंड सब रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, आपको पता है गवर्नमेंट को जो एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, गवर्नमेंट को क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि जितने भी बैंक्स होते हैं ये अपना एरिया सिर्फ सिटीज और उन सब में रखना चाहते हैं, क्योंकि वहां से प्रॉफिट ज्यादा है, वहां से आपको ज्यादा सेविंग भी मिलती है, एट द सेम टाइम लोन भी बहुत लोग लेते हैं। अब जब लोगों के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है लोन लेने का, तो वो क्या करेंगे? दैट इज व्हाई गवर्नमेंट हैज कम अप विद प्राइवेट दिस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। सो बेसिकली रीजनल और उन सब में बैंक्स की और फाइनेंशियल लिटरेशन की बहुत कमी है, लोग इतने लिटरेट नहीं है कि उनको फाइनेंशियल की आइडिया हो सके कि हम अपने पैसे को और अपने आप को, अपने लोन को, सबको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। इवन गवर्नमेंट हैज कम अप एंड द आरबीआई हैज कम अप विद द पॉलिसीज सो दैट दे कैन एंड इम्पार्ट दिस लिटरेसी टू द पीपल। इवन जो सिटीज में उन्हें भी आइडिया नहीं है कि कैसे अपने इसको रखना है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्लो एज वी कैन सी, दो जितने भी बैंक्स हैं इनमें हमारे जो एसेट्स हैं जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से काफी ज्यादा है। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू लो डाउन दिस बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। लेकिन तो डेवलपिंग कंट्री में ये बहुत ज्यादा होता है, डेवलपिंग कंट्री में रिसोर्स कम होते हैं, ठीक है, पैसे ही कम होते हैं, वो सारी चीज की प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल टैक्स कॉर्पोरेशन, जो लोग यहाँ से भाग के, नीरव मोदी वगैरह है, किसी दूसरी कंट्री में जाके छुप जाते हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल टैक्स में कोई कोऑपरेशन ही नहीं है, ठीक है। बेसिकली फ्रॉड वगैरह बहुत ज्यादा होता है क्योंकि नेक्सस होता है प्राइवेट और उनका। जब आपकी आपकी खुद की कंट्री उतनी समझदार नहीं होती है, आपका जो पॉलिटिकल डिसीजन जो है, डेमोक्रेसी टैक्स भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, क्योंकि डेमोक्रेसी में रूल्स को और रेगुलेशन को लाना उतना मुश्किल होता है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट बैंक्स की प्रॉब्लम भी, डेवलपमेंट बैंक्स भी होते हैं, ग्रीन बैंक्स भी होते हैं, देयर आर सो मेनी बैंक्स, ओके। सो दिस आर द प्रॉब्लम। Okay, so this is the best thing about this is the most knowledgeable slide. Further we can see I have, ठीक है, steps that government has taken to resolve the issues of resources mobilization. This is the National Development Council और राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है,
ये गवर्नमेंट ने अगस्त 1962 में किया था। अनलाइक प्लानिंग कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी नीति आयोग है, आपका प्लानिंग कमीशन है, जबकि इतनी इंपॉर्टेंट बॉडीज है, बट इन ये कॉन्स्टिट्यूशन से बैक्ड नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे चलते हैं, ठीक है। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और राष्ट्रीय विकास परिषद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे बोथ सेंटर और स्टेट दोनों से अंदर ऐसे लोग आते हैं, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन इसके अंदर है, ठीक है। स्टेट चीफ मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, रिप्रेजेंट। तो डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और राष्ट्रीय विकास परिषद एक ऐसा समूह है जहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियंस हैं और जितने इम्पोर्टेंट लोग हैं वो मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हम इस रिसोर्सेज को कहाँ पे प्रायोरिटी बेस पे मतलब यूज करेंगे, एट द सेम टाइम कितने एफिशिएंसी करेंगे, और इसमें स्टेट और सेंटर दोनों का स्टेक होना चाहिए, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हैज कम अप विद दिस पर्पस। और ये आपको प्लानिंग में हेल्प करता है, आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है, आपको स्ट्रेटेजिक और जो जितने भी इकोनॉमिस्ट वगैरह होते हैं वो इनमें आपको हेल्प करते हैं बनाने में, ठीक है। ऐसे एज वी नो देयर इज अ बॉडी कॉल्ड फाइनेंस कमीशन, देयर इज अ कमीशन कॉल्ड फाइनेंस कमीशन। ये कमीशन क्या करता है, सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर प्लस स्टेट के बीच में जितने भी टैक्स की या रिवेन्यू होता है, जितने भी तरह का रिवेन्यू होता है, उस रिवेन्यू को स्टेट और क्योंकि सेंटर की अपने आप में कोई टेरिटरी थोड़ी है, सेंटर और स्टेट, सेंटर की टेरिटरी क्या है, जितने स्टेट्स हैं सब उसकी टेरिटरी, स्टेट की अपनी पर्टिकुलर टेरिटरी है। तो उन दोनों के टैक्स के बीच, उन दोनों में जो रेवेन्यू हुआ है सेंटर का, उसके बीच में डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स होते हैं, वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से होती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को करते हैं, ठीक है। सॉरी, प्रेसिडेंट को अपनी फाइल सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं, और उसी हिसाब से स्टेट और सेंटर के बीच में फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिवीजन होता है, ठीक है। ऐसे स्टेट फाइनेंशियल कमीशन है, बाद में आया था 1990s के बाद, क्योंकि 1990s के बाद इसलिए आया क्योंकि पंचायत तभी तो स्टैब्लिश हुआ 72 में, ठीक है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब ये आया, तब ये डिसाइड हुआ कि सेंटर और स्टेट में डिवीजन तो हो गया रिसोर्सेज का, अब स्टेट और जो भी लोकल बॉडीज हैं उनके बीच में जो रिसोर्सेज का डिवीजन होगा, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कमीशन बनाया जाएगा वो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन होगा। तो ये क्या है, सेंटर का ही एक रेप्लिकेशन है स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, जो स्टेट और पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में टैक्स के डिवीजन की बात करता है, ठीक है। So these are the steps that government had taken to address the resources. अगली स्लाइड। For human resources के लिए कौन कौन से steps government has taken, ठीक है। What are those steps that government has taken? First है skill development cell, जो आपकी ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एक रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट की, जो टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करती है। उनके साथ मिलके एक स्किल डेवलपमेंट सेल बनाया गया है, जितने भी ड्रॉप आउट्स होते हैं, ठीक है, ड्रॉप आउट्स हैं उनको, प्लस जितने भी कॉलेज में हैं जो कि AICTE के जितने भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हैं, उनमें सबको स्किल प्रोवाइड करने के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेल बनाया गया है IECT के हेल्प से, ठीक है। ऐसी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बाय टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये वो सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट हैज टेकन, और ये हर साल लेती रहती है और हर साल नई नई स्कीम्स आती रहती है, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर से इसको लिखना है। आपको करंट अफेयर में जितनी स्कीम्स आती है रिलेटेड टू मोबिलाइजेशन, रिलेटेड टू द कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ठीक है, उसके लिए अब जैसे एम्प्लॉयमेंट इनहेंसमेंट, for the implementation enhancement opportunity for the student council has signed the MOU, ठीक है, with the ETE, जैसे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उसने जो लिंक्डइन आपकी जो वेबसाइट है उसके साथ, मॉन्स्टर्स के साथ, ICT एकेडमी के साथ, इन सब के मिल के साथ वो स्किल्स डेवलप कर रही है इंस्टीट्यूट के अंदर, और उनको हेल्प कर रही है ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। सो बेसिकली these are all for the skill development, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हो गया।
महात्मा गांधी, ये वाला बहुत फेमस है इसलिए आई रोट दिस मच, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि क्योंकि इसका इसका बजट अगर कम ज्यादा होता है और ये इतनी सक्सेसफुल स्कीम रही है टू गिव द एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पॉपुलेशन, ये अक्सर न्यूज में होती है और इसके बारे में क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट रहता ही है, आ ही जाता है, ठीक है। इसमें आपको 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, ठीक है। और जिसमें गवर्नमेंट ने एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड बनाया है, ऐसे ही स्टेट का है एक स्टेट, यही लिखा होगा स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। और अच्छी बात यह है कि इसमें 1/3 जो पॉपुलेशन है वो रिजर्व्ड है वुमेन के लिए। तो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट वुमेन के लिए 1/3 हो गया, ठीक है। नेशनल और स्टेट फंड हो गए, ये सारी चीज मनरेगा को एक सक्सेसफुल बनाती है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बहुत सक्सेसफुल है। टू जो किड्स होते हैं, जो उनको नर्सरी जो उनके न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। एंड किड्स की जो प्ले स्कूल है उसके लिए, ठीक है। एंड जो मैटरनिटी बेनिफिट्स जो प्रोवाइड करते हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप सब कुछ करता है वो, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चिल्ड्रंस भी क्या है, वल्नरेबल सेक्शन है, ओल्ड एज वल्नरेबल सेक्शन है। इन सारे सेक्शंस के लिए मेट वुमेन हो गए, ठीक है। इन सब सेक्शन के लिए गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस स्कीम सो दैट गवर्नमेंट कैन गिव यू द एम्प्लॉयमेंट एट द सेम टाइम देन दे कैन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगी, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, आपकी हेल्थ ठीक रहे, ठीक है, और आपकी कैपेसिटी डेवलप की जाए अच्छे से ताकि आपको अच्छी जॉब मिल पाए और आप ज्यादा से ज्यादा नेशन में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो उसके लिए आजीविका आई 2011 में, ठीक है। ऐसी अर्बन स्कीम आ गई, सुरक्षा बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दिस। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया, यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस मेक इन इंडिया, ठीक है। these are all the schemes for the human resource mobilization। और तो बहुत सारी मैंने लिखी भी नहीं है क्योंकि कवर करना बड़ा मुश्किल है और बहुत सारी नई नई आती रहती है, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो ये हो गई महात्मा गांधी हो गई, ये मैंने आपको कवर करा दी। ऐसी बहुत सारी और स्कीम्स हैं जो कि आपको याद रखनी है और आपको पता होना चाहिए कि आंसर में मुझे वो कहाँ लिखना है, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हो गया, अब ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज के मोबिलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए कि लोगों को कैसे कितना फाइनेंस पहुंचाया जा सके, प्राइवेट सेक्टर को कितना फाइनेंस पहुंचाया जा सके, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट खुद फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज कर सके, उन सब के लिए। तो उसके लिए RRBs हैं, जो मैंने रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जो आपको नरसिम्हा ग्रुप ने 1975 में सजेस्ट किया था और गवर्नमेंट में, ताकि जितने भी रूरल एरियाज हैं उनको भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल पाए, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गई, जितने कमर्शियल बैंक्स है आपको दे आर 40% लाइबल टू ओपन देयर ब्रांचेस इन द रूरल एरिया सो दैट रूरल masses can get loans and financial facilities, ठीक है। एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को भी डोर स्टेप फैसिलिटी दी जाए या उनके ऑफिस पे जाके उनको दिया जाए, ताकि जल्दी जल्दी जितना मतलब कुछ हेजिटेंसी जो होती है वो सारी चीज खत्म हो जाए और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहे, ठीक है। KYC नो योर कस्टमर के जो नॉर्म्स है उनको काफी रिलैक्स कर दिया है। जनधन आधार योजना, ये जैम बहुत ही जैम ट्रिनिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये काफी फेमस ट्रिनिटी है जिसकी वजह से आप आसानी से बैंक खोल सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपना फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब पेमेंट बैंक है जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, आपके जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं जहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है, यही बैंक आगे जाके अपने आप को प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ठीक है, ऐसे ही मुद्रा बैंक हो गया आपके जो कि स्मॉल मार्जिनल बिजनेसेस के लिए, ठीक है। ये आपको लोन प्रोवाइड कराता है कम इंटरेस्ट रेट पे। रुपए कार्ड बहुत फेमस कार्ड हो गया इंडिया का, इतना कि वीजा और आपके मास्टर कार्ड को थ्रेटन कर रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट है बैक्ड है। आपका UPI हो गया, UPI इंडिया में UPI का अगर मान लो जितना यूज होता है, अगर वो इतना यूज होता है तो बाकी USA में इतना है, किसी कंट्री में इतना है, किसी कंट्री में, मतलब इंडिया में UPI बहुत फेमस हुआ और बहुत जल्दी फेमस हुआ। तो एक ग्रेट सक्सेस है, इतना कि दूसरी कंट्री में आप वियतनाम वगैरह में बात चल रही है, इवन अरेबिया, सऊदी अरेबिया और आपके कुवैत और
अरेबियन कंट्रीज, पेनिनसुलर में आप इसको यूज कर सकते हैं यूपीआई को। यूपीआई जो कि एनपीसीआई ने बनाया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने बनाया था, और ये इतना फेमस हो रहा है कि ये चीज रियली अफेक्टिंग इस रुपए कार्ड के साथ, इसके साथ मिलके बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, आई टोल्ड यू, वो आपको मदद करता है हर एक चीज के लिए। ऐसे ही ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में बताया गया है कि आपको 18% आपको एग्रीकल्चर में देना है, 10% वीकर सेक्शन को देना है, आपको एजुकेशन लोन्स देने हैं। ठीक है, ऐसे काम करने हैं, जो कि प्रायोरिटी आरबीआई सेट करती है कि आपको अपने टोटल इनकम में से इतनी इनकम आपको इस सेक्टर में ही डिवोट करना ही होगा। ठीक है, ताकि इक्वली सबको फाइनेंस मिल सके और सारे सेक्टर इक्वली ग्रो कर सके, इसलिए। ठीक है, okay, so these are the financial resources and how government mobilize these financial resources, or how imparting the financial resources or knowledge to the people. ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए बता दिया, एंड द सेकंड इज नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ग्रीन कॉरिडोर है जिसमें गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऐसे ही आपका नेशनल क्लीन एनर्जी फंड है, इसमें वो फंड है जिसके अंदर गवर्नमेंट पैसे डालती है ताकि रिसर्च के लिए जो नए नए तरीके लाए जा सके। ठीक है, एंड ऐसे ही बायोगैस है, आपको पता होगा गांव में होता है बायोगैस होता है, यहाँ पे काऊ डंग वगैरह डाले जाते हैं और फिर इसमें एक पाइप होती है, वो पाइप अंदर घरों में जाती है और फिर वहां से आप गैस अपना बना सकते हैं। ठीक है, सो बायोगैस ऐसा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, और इसको ग्रिड के साथ जोड़ देंगे तो बाकी भी काम कर सकता है। ऐसे ही नेशनल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी प्लस प्रधानमंत्री आवास योजना, ये दोनों हाउसिंग स्कीम्स है। ठीक है, आपके एफडीआई जो है गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया 100% रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको पॉज करिए और इसको पढ़िए आराम से, ये जितनी भी स्लाइड्स हैं ये सिर्फ सबको समझाई नहीं जा सकती, बट आपको यू हैव टू रिमेम्बर इट। ठीक है, अब बहुत बोलूंगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी और फिर बिल्कुल काम नहीं करेगी, तो बेसिकली आपको रुक रुक के सारी स्लाइड्स को पढ़ना है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। कंक्लूजन में आई कैन टेल यू कि व्हाट इज रिसोर्सेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, mobilization of resources, issues with the mobilization of resources, steps that government has taken to mobilize the resources and impart the financial capabilities और human development के लिए जो skills वगैरह हैं वो सारे sectors कहाँ से मिलते हैं। तो बेसिकली रिसोर्स में ये सारे पॉइंट्स तो कवर हो गए। एट द सेम टाइम जो आपको गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से रिसोर्स मिलता है, जैसे बैंक से मिलता है, फाइनेंशियल मार्केट से मिलता है, ठीक है, टैक्स से मिलता है। ठीक है, ओके, सो गवर्नमेंट को रिसोर्स मिलता कहाँ से है, ऐसे नेचुरल नेचर में आपको रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं। आपको पता है कि रिसोर्सेज आपके जो कोल हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, विंड, एयर, वाटर, सारे रिसोर्सेज हैं। कुछ एग्जॉस्टेबल है, कुछ नॉन एग्जॉस्टेबल है। ठीक है, कुछ रिन्यूएबल्स है, नॉन रिन्यूएबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए। तो आप रिसोर्सेज को एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में नहीं देख सकते, एक वर्ड की मीनिंग के नहीं देख सकते। रिसोर्सेज बहुत तरह के होते हैं। आप अपनी आईज क्लोज करें और आप सोचें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि डेफिनेशन ही इतनी सही है उसकी। एनीथिंग विच हैज यूज, विच हैज वैल्यू एंड विच कैन बी डेवलप्ड विद द टेक्नोलॉजी सो दैट इट कैन सेटिस्फाई योर नीड्स। ठीक है, इज कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, कोई मटेरियल, कोई आइटम ऐसी ही पड़ा हुआ है तो इट्स नॉट रिसोर्सेज अनलेस यू कैन कन्वर्ट इट। ठीक है, तब आप उसको कन्वर्ट करते हैं, बिकम रिसोर्सेज। ठीक है, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक ही रहता, बट with the time and with the technology we used it and make it as a pencil so that we can use it on a pen tab, right? So overall this was a syllabus कि resources क्या होता है, उन resources को कैसे develop किया जा सकता है, वो इस स्लाइड में मैंने कवर कर दिया है। Please subscribe this channel and further I'll be covering up with the more lectures about development, equal, inclusive growth and everything. We'll cover a whole GS3 syllabus. ठीक है, GS3 सिलेबस। ओके, सो मैं एक बार पीछे से दोबारा दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। नहीं, रहने देता हूँ, आप खुद ही वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।